ਅਮਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਿਖੋ ਕਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਓ ਅਗਰ ਮਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ نہیں ہوئے گا۔ ہاں اگر تسی اے والی بحث شروع کر دیو کہ جی کیا ہمیں حق نہیں ہے، ہم بھئی یہ والی ڈسکشن ختم ہو چکی ہے۔ اب جب ایک فیصلہ آ گیا اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکشن نہیں کرنی کہ جی یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ ہاں اس کا یہ ہے کہ اگر عدالت میں کوئی آپ کی سنوائی ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس مقدمے کی جو بنیاد ہے اس کو آپ ختم کریں، تو پھر تو ہے کہ وہ قانون ختم ہو جائے۔ جتنی دیر تک قانون ہے اس کی آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی، ورنہ فساد ہی ہوگا، اور فساد میں نقصان جماعت احمدیہ والوں کو ہی ہوگا نا، کیونکہ وہ تو زیادہ میجورٹی میں لوگ ہیں، اور پاکستان میں تو ویسے حالات اس طرح کے ہر ایک کو پتہ ہے کہ لا قانونیت ہے، تو وہاں پہ اور زیادہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو چاہیے کہ بالکل بھی ایسے چپ کر کے رہیں، کوئی زیادہ شور وغیرہ خام خواہ کسی کو دکھانا شو کرنا، اور ہے کہ جویں مرزا طاہر نے اپنے والوں بڑی قربانی کی تھی کہ جی آپ تے نہیں انہیں کیتا پر لوکاں نے کہا بلے لا کے لا الہ اللہ دے پھرو اسی قربانیاں دے دیں گے، بھی نہیں کر سکتے تسی ہے تہاڈی قربانیاں وہ ساریاں دیاں لے لین گے، انہوں نے کوئی فرق نہیں پائے گا، تے تسی اپنے سراں دی آپ حفاظت کرو تے اپنیاں جذبات تے کنٹرول کرو۔ جی اچھا میں لیٹر پڑھ کے سنا دینا۔ دس از ان ریفرنس ٹو مسز امتل وکیل احمد، ممبر کوڈ نمبر 20,320 آف Northern Virginia Jamaat. I regret to inform that due to her non-compliance with the decision of Darul Qaza, she has been disciplined for payment of chanda and service to Jamaat. This disciplinary action has been taken as per the rules and regulations of Ahmadiyya Muslim community. Best regards and wassalam, humbly Mukhtar Ahmed Malli, General Secretary ورجینیا۔ یہ جی لیٹر ہے ان کا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یعنی اخراج کر لیا جائے گا، نہ ان سے کوئی ذمہ داری ان کو دی جائے گی، مکاتے یعنی مکاتیہ ان سے ہوگا۔ جو کام ہے ان کا وہی مشرکین والا کام وہی کرتے ہیں مرزائی، لوگ کہتے لوگوں کو ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی کیا ہے انہوں نے، مشرکین والا کام۔ طارق چوہان نظر آئے تو بس انہوں سلام نہیں کرنا، جڑا سلام کرے گا وہ اخراج ہو جائے گا، وہ چوہے وانگو بھائی دینے طارق چوہان نو ویکھ کے، حالانکہ اپنی بےزتی آپ کراندے نے بھی میرا کی جاندا ہے، لیکن اتنے بیوقوف نے کہ سمجھے سی بڑا کوئی تیر مارے بائی کٹ کر کے، بھی تہاڈا بائی کٹ جُتی تے ساڈی سانوں کو راجہ صاحب نیشنل ہیڈ کوارٹر بیت الرحمان ماسک احمدیہ موومنٹ اسلام INC USA اے تے تھلے ایک نمبر ہے جڑا پڑھیا نہیں جا رہا تے آل پریزیڈنٹس آل مشنریز ممبرز آف نیشنل عاملہ اے لکھیا ہے 12 فروری 2021 دا ایت لیٹر ہے تے جڑی انہاں دے دارالقضاء ہے او دے بارے انہوں نے کی کیا کہ بھئی او دا کوئی فیصلہ سی جڑا انہوں نے نہیں منیا۔ دارالقضاء کا ذکر ہے۔ I regret to inform that due to her non-compliance with the decision of Darul Qaza, ہاں ٹھیک she ہے، has been disciplined for payment of chanda and service of Jamaat۔ یہ یعنی 2021 ਚ وسیم صاحب پوری گل دس کے نہیں کہ انہوں کو گل پوری ہونی ہے کہ دارالقضاء دا کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں منیا تے ادوں دا ہی انہاں دا چندہ شندہ یعنی انہاں نال مکاتیہ وغیرہ کر دتا گیا۔ یہ 2021 دی خبر ہے؟ ہاں جی، یہ جڑی اتنے ڈیٹ لکھی نا رائٹ سائڈ تے یہ 12 یہ تو کوئی نویں خبر تھی نا، ہاں جی بریکنگ نیوز کہہ رہے تھے نا۔ نہیں ہوں وہ اکبر صاحب بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ انہوں اسلام قبول کر رہے ہیں۔
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਰਈਏ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਸਰ ਖਬਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇ- ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਜ਼ਾ। ਹਾਂ, ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਰਾਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਮਾਤ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਲੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਖਰੂਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬੀਨ ਡਿਸਪਲਿਨਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਖਰਾਜ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਖਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਬੀਨ ਡਿਸਪਲਿਨਡ, ਇਹ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਚੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਜੋਜੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਮੋਡਰੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਜੋਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਪਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਮੌਲਾ ਬਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮੀ ਹੋ। ਆਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੌਲਾ ਬਸ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ने फैसला कर देता है। जी आया अभी भाई इसमें एक चीज सुन लें, ये जो अभी आमिर भाई ने लेटर पढ़ा ना, ये सबसे पहली सजा होती है, ठीक है। अगर इस सजा के बाद भी बंदा नहीं सुधरता ना, तो फिर उसका खराज निज़ाम जमात किया जाता है। और ये पहली सजा होती है जिसमें चंदे लेने के ऊपर पाबंदी होती है। और इसमें ये होता है कि फिर ओहदे भी नहीं ले सकते, चंदे नहीं ले सकते तो फिर ओहदों के ऊपर भी पाबंदी आती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सजा दी जाती है। अमूमन सबको पहले ऐसे ही सजा होती है, किसी को डायरेक्ट सजा नहीं होती। सबसे पहले चंदे के ऊपर पाबंदी लगती है, उसके 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद जो है ना, वो उसको खराज निज़ाम जमात होता है। कभी भी अगर आप माफी ना मांगे तो फिर हाँ, ना माफी मांगे तो ठीक है ना, ये फर्स्ट सजा होती है। और उसके बाद जो होती है वो खराज निज़ाम जमात होती है। ये बात लोग नोट कर लें, खराज निज़ाम जमात होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि मिर्जा साहब को, हाँ, लेकिन वो जो है जिसको ये बाकायदा तौर पे ये कहते हैं मुर्तद हो गए हैं, वो उस वक्त होता है जब बंदा खुद इस बात का इकरार कर लेता है कि मैं मिर्जा साहब पे को झूठा मानता हूँ, या ऐसा मैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इस तरह का चीज़ नहीं लाता। तो उसके लिए फिर एक होता है कि अब ये मुर्तद हो गया, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। नहीं, अच्छा, उनका बस निज़ाम जमात से खारिज करते हैं, वो और क्यों कर सकते हैं। तारक साहब, ये जमात में हाफिज मुजफ्फर कौन है? हाफिज मुजफ्फर तो जमात का खड़पैंच है। अच्छा, किथे पाकिस्तान दी? हाँ जी, रबुआ दे विच। अच्छा, हाफिज मुजफ्फर भी जड़ा ने 3 ਨੂੰ 4 करदा रहंदा, बीमियां करदा रहंदा हर वेले। नहीं हो रही मैं वीडियो वेंदा था पे जड़ा वो शादी ते मुजरा हो रहा है। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾ, ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਲੇ ਕੀ ਥਾਪ ਕਰ, ਆਹੋ ਆਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਏ।
ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਸ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਰਸ ਘੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਮਸਲਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਰੂਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬਣ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਤਰਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਰ ਬੁਰਿਆ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਏਦਾ। शादी ब्याह के गीत, मिर्जाइयों की शादी ब्याह के गीत। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी, मुतफर्रक कुतब। ਅੱਛਾ, ਮੁਤਫਰਕ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ बल्कि इतने पढ़ के सुनाया करेंगे। ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਆਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੀ ਮੌਸੀਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਹ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल। ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। हाँ, वाटर साहब ने पढ़िया नहीं ना, इन्होंने सुनावांगे तो फिर देखांगे। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ। ਇਹ ਪੋਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੋਪ। ਨਹੀਂ, ਪੌਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਮਾਸਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਪ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪ हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ, ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ फायदा हासिल करो। ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ। वो थक गए नहीं है बेचारे। नहीं, वाटर भाई मैं तो साहब बस को- ये आपको बता रहा था जिशान भाई कि हमारे जो अकायद हैं वो लोगों को जब से पता लग रही है, वो बड़ा उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और बड़े बड़े उलमा जैसे गामदी ना साहब हैं, मजाक करो ना, वाटर साहब भाई ना मजाक करा करो, हादसा भी कोई नहीं अच्छा होता। वाटर भाई, जब लोगों को अच्छा पता वाटर चलता भाई, है ना कि गामदी मिर्जा साहब साहब जो भी है, थे, बात तो मुकम्मल होने दें। और खातमुन अच्छा नबीय्यीन भी वाटर थे, भाई, तो गामदी लोग साहब बहुत को- खुश होते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦ ਬੋਲਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौलाना इसहाक साहब जो है ना, उन्होंने इस पर बकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। हाँ जी। कमालाते नबूवत पे आप यूट्यूब पे पढ़े, सुने वो वीडियो और देखें भी। किसने और रिकॉर्ड करवाई है? मौलाना इसहाक साहब ने हाँ, बहुत ठीक है। और मौलाना इसहाक साहब ने जो मिर्जा साहब को अल्फाज मौलाना दिए, से आते उनको कज़ाब और दजाल कह रहे हैं। अबू बकर ये उन्हें ही ना रखा सी ज़ंदीक। उन्होंने कहा था कि मिर्जा कादियानी को मुर्तद नहीं कहें, ये जंदीक या जंदीक, ये मुर्तद से भी ऊपर होता है। हाँ जी, अब मुझे हैरानी आती है कि वो मजबूरी होती है। उसमें, ये आपको दूध मौलवी भी साहब देना के पड़ता है ना, तो मेंगने डाल के। सुनाते ये हैं आपकी तो भी मजबूरी है मौलवी अपनी साहब का जिंदगी तो बचाने ये के लिए। मौलवी साहब को नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं, चलो मैं लाइक तो नहीं करता है मौलाना इसहाक साहब को, तो मैं उनके अल्फाज निकाल के सुना दूं आपको। नहीं हमने आप सुने उनके हुए हैं। आप उनके वो अल्फाज निकाल के सुनाए जो कमालाते नबूवत पे उन्होंने कहे। हाँ हाँ, सारी सारी सुना देते हैं। हाँ, वो सारी की सारी वीडियो सुनाए और फिर उसमें जो पहले अहमदियों के कमालात लिए नबूवत वाले सुनाएंगे, फिर वहां अच्छा सुनाएंगे वाटर भाई, आपने पहले खुद उनकी जिंदगी वीडियो का। सुनी है कि आपने सुनी है या किसी ने बस कह दिया और आपने मान लिया? क्योंकि अमूमन जमात में नहीं भाई, मैंने कई दफा सुनी है। अरे जान साहब तुसी की खोल दियो बे। मैं आपको ऐसा बंदा लगता हूँ जो सिर्फ सुनाई बात पे चलता हो। तो फिर आपने भाई, आधी जिस बात तरह का आपका दावा है, लग तो ये रहा है कि आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातें कहीं से।
नहीं आपने कहा कि लोग आपकी जो उनसे है वो लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं, जबकि वो आपके दावा जात को पढ़ रहे हैं ना, तो लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं। यकीन करें, जब का मैंने इसमाइल अहमद का पढ़ा है ना, मुझे अपनी फैमिली से और नफरत होनी शुरू हो गई। मुझे नहीं समझ आ रही नहीं, लेकिन आप बड़े गुस्सा आना शुरू हो गया। ये मिर्जाई ना डॉक्टर असरार का सुनाते हैं कि जी उन्होंने कहा मेहदी की खिलाफत होगी। हाँ जी, लेकिन वो दूसरा ਡਾਕਟਰ रोग ਅਸਰਾਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो फिर तुसी वो भी मान लो, तो फिर कोई सब नहीं, वो बात ही नहीं करते। दूसरे है कि देखो देखिए चौहान साहब, आपके मुंह से भी जो अच्छी बातें होंगी ना, आपको अच्छे अल्फाज में याद रखने के लिए साहब ना, नहीं वाटर साहब, असल बात ये है कि डॉक्टर असरार की बात तो आप बताते हैं, और मिर्जा साहब ने जो कहा है उसको क्यों नहीं सुनाते? क्या चीज? मिर्जा साहब ने कहा है कि खिलाफत जो है वो खिलाफत मोहम्मदिया है, मुजद्दिदीन का सिलसिला, मैं 13वां खलीफा हूँ उसका, ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। अब ये डॉक्टर भी असरार ठीक है। की आप सुनाते हैं मेहदी की खिलाफत होगी। मिर्जा साहब जो मेहदी खुद थे, उन्होंने कहा है मेरी खिलाफत होगी, वो तो खुद लेकिन खलीफा थे उसमें- मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौहान साहब, लेकिन उसमें आप स्टेज बदल गई है ना, आप उस आमिर साहब को भी आता है ये सारा मजमून, तो अगर आप आमिर साहब से भी सुन लें तो उनको भी पता है, ये तो 101 दफा डिस्कस हो चुका हुआ है। नहीं तो मिर्जा साहब का तो आप कहाँ सुनाते हैं? मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि मैं 13वां खलीफा हूँ, ये आयत इस्तखलाफ के मुताबिक मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी। आप कभी कोई आपने सुनाया कहीं? आप तो मुजद्दिद के नाम से पोटियां लग जाती हैं मिर्जाइयों को। पता नहीं यार हमें किस किस बात से लगती हैं। चले बहरहाल अच्छी बात। मौजू आज को तक आगे मैंने बढ़ाने किसी मिर्जाई के मुंह से नहीं सुना, हालांकि मिर्जा साहब ने हदीस मुजद्दिदीन को अपनी सदाकत के अव्वल निशानी के तौर पर पेश किया। कभी किसी चल मैं मिर्जाई आपको की याद बात कराने के लिए ना, मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं। हाँ बताएं। जो आप खलीफा की बात कर रहे हैं ना, वो खलीफतुल्लाह है, ठीक हाँ? है। जो खलीफा राशिदीन है ना, वो खलीफतुन नबी है, अच्छा ठीक है। और ये जो जमात अहमदिया ने किया है, ये खलीफतुल मसीह या महदी है, हाँ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ये हाँ कहा जी। कि मिर्जा साहब ने ये आप बात कहाँ 3 कही है? किस्म की खिलाफत को साथ नहीं मिला सकते। हाँ, और मैंने तुर्की के पूछा बादशाह आपसे ने भाई, जो भाई मजहबी मैं तो तौर ये पर, पूछ रहा हूँ मिर्जा तो फिर तो साहब मैं ने तो कहाँ कह कहा नहीं है? सकूंगा। मुझे अपना फलसफा तो ना बताएं, आप बताएं। देखें जी, मिर्जा साहब ने ये हवाला है उसका, यहाँ मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरे खानदान की खिलाफत चलेगी। ऐसा क्योंकि तो कोई मिर्जा दावा साहब मैंने नहीं, जहाँ ना पढ़ा है, उन्होंने मिर्जा साहब किया ने है, ये ना कहा हम है उसको ये मानते हैं। मुजद्दिदीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। हाँ जी, बिल्कुल होएगा, वो भी बिल्कुल होगा। होएगा, तो फिर खिलाफत विच कित्थों आ गई? बिल्कुल होएगा। देखिए चौहान साहब, मैंने अभी आपके सामने बताया है कि 3 किस्म की खिलाफत जो मैंने आपके सामने बताई है, और एक चौथी अच्छा तो किस्म की मुझे ये खिलाफत बताएं, आप हक मुअद्दल हैं? आप बताएं, मिर्जा साहब ने ये कहा है, फिर तो मैं आपकी बात मानूं। मैं आपका मैं फलसफा वाटर को क्या भाई, सर में मारूं? वाटर करूँ भाई, ना। वाटर भाई, अगर कल को जंबा साहब अपनी खिलाफत कह देते हैं, मेरे पास खिलाफत होगी, और उसका पहला खलीफा जो है वो तारक चौहान होंगे, फिर तारक चौहान साहब की जो खिलाफत होगी वो कौन सी खिलाफत होगी फिर? मैं वो तारक चौहान को खुशफहमी खलीफा की बनाएंगे तो मैं जंबा साहब ने कहूंगा तुसी भी कर जाओ। तो जब जिशान भाई, खिलाफत वो ਨੂੰ खुशफहमी की ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ खिलाफत ਆएंगे, जो होगी। वही शुरू कर देना पखंड, तो फिर ਅਸੀਂ वैसे ही चंगे सी। अच्छा जिशान भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरे से ना पूछें भाई। बस हो गई ना जिशान भाई। मुझसे पूछे। हाँ नहीं, तो तारक तुसी ना कुल पूछो, तो तारक चौहान साहब करो। हाँ जी, तारिक चौहान साहब, आप वफात मसीह पे यकीन रखते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। चले, एक पॉइंट इकट्ठे हो गया। अब आपको जो है, आप खिलाफतुल्लाह को मानते हैं ना कि अल्लाह अपना खलीफा मुकर्रर करता है, जिसको आप मुजद्दद भी कह सकते हैं, जिसको आप नबी भी कह सकते हैं। पुराने जमाने में नबी भी आया करते थे। मिर्जा साहब ने यही कहा है, मुजद्दद जो है वो जिली बरूदी नबी होता है, और वो बस। उम्मती नबी होता आप है, इसको मानते हैं ना? और ये आप सिलसिला वाली- क़यामत तक जारी है, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, आप मिर्जा साहब की खिलाफत के सिस्टम को नहीं मानते ना? नहीं, मिर्जा साहब जो- की खिलाफत कोई है ही नहीं है, हो तो मैं जरूर मानूं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं आपके साथ इस बात पे भी एग्री करता हूँ। तो अब आपका, मेरा और आपका इतराज रह क्या जाता है? आप इस बात को भी मानते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से कलाम करता है? बिल्कुल। बस, तो मेरा तो आपका इख्तलाफ कहीं बनता ही नहीं, तो मैं तो भाई आपसे क्यों इख्तलाफ एतराज ये है जो आपने ये खिलाफत गद्दी बनाई है जो क़यामत तक जारी रहेगी, आप तो हर एक के ऊपर टक्कर लगा रहे हैं। एक और बंदा आ गया, 201 हो गए। देखिए चौहान साहब, कुछ दावे कर देने में ना कोई नाराजगी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहें कि अल्लाह ताला जो है, मैंने जो तहरीक शुरू की है ये क़यामत तक रहेगी,
तो आपको दावा करने पे तो कोई पाबंदी नहीं, नहीं है ना, ये बाकी बात आगे नहीं। अल्लाह जो आप करता कह है। रहे हैं ये आपकी जो तहरीक आपने खिलाफत की शुरू की है, ये खिलाफतुल मसीह, मसीह की खिलाफत है। और मसीह हाँ ने हाँ कहाँ खिलाफत कही है? मसीह तो खुद खलीफा है बेचारा। अब जंबा साहब ने कहा है वो मसीह भी नहीं थे। चले ठीक है। तो बात ये है कि ये एक गौरतलब मौजू है, इस पर मैं और आप इकट्ठे बैठेंगे चले और ठीक। पॉजिटिव नतीजे पे आरफ चौहान पहुंचेंगे। भाई, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा और आपका बहुत सारी बातों पे वो जो है ना इत्तेफाक है, मेरा भाई और जाहिर आपका है कोई हमारा इत्तेफाक है, इख्तलाफ क्योंकि नहीं आप ही है। मिर्जा साहब को मानते हैं। हाँ हाँ जो इख्तलाफ है वो तो यहीं पे होता है ना, कि अच्छा एक तारक मिर्जा चौहान खानदान भाई, की गद्दी आपको है, जो आप कहते हैं खुदा ने खलीफा बनाया है पोप की तर्ज पर धुएं के बगैर, ये, और फिर आप कहते हैं ये मसीह के खलीफे हैं। यहाँ पे सारी बात आके देखिए, खत्म चौहान होती है। साहब अगर खलीफा ना होता तो चले जमात अहमदिया अंजुमन होती, उसका हेड होता लाहौरी जमात की तरह, तो कोई ना कोई तो किसी जमात का हेड होता ही है। अगर नहीं उसका नाम देखे ना, आप ये खलीफा रख दें मुझे तो आपको क्या मुसीबत ये एतराज है? है, मिर्जाइयों से मैं जब बात करता हूँ वो अपना फलसफा बताते हैं। आप देखिए मिर्जा साहब ने क्या कहा है। मिर्जा साहब ने कहा है अंजुमन खुदा के खलीफा की जानशीन है, उस वक्त तक मिलकर काम करो जब तक कोई खुदा से रोल कुदस पाकर खड़ा ना हो। जहां जहां जमाते हैं वहां पे जो भी एक बुजुर्ग आप ले और उसके नाम, मेरे नाम पे बैत ले ले। और मरकज में उन्होंने अंजुमन को जानशीन अपना बनाया। ये मिर्जा साहब का सेटअप था, आपने अच्छा सेटअप को चौहान तोड़ साहब, दिया मेरे ना। ऐसी बातों में ना यकीन करें कि अकायद रखें या ना रखें, इससे किसी मुसलमान की जिंदगी पे कोई असर नहीं अभी पड़ता। मुसलमानों आप का तो मुझे हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम उनको फासिक काफर कहते हैं, उनके साथ हमारा क्या ताल्लुक है? हम तो मिर्जा साहब के नहीं मानने वालों की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, चौहान साहब इस तरह तो ये भी रसूल देखिए, पाक ने भी नहीं कहा कि, चौहान साहब रसूल पाक ने भी नहीं कहा था कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होगा, उसके बाद उमर होगा, उसके बाद और उस्मान यार होगा, मिर्जा उसके साहब ने बाद अली खिलाफत का होगा। ही नहीं कहीं जिक्र किया। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिक्र किया था। उन्होंने किया 30 था, साल होगी मेरे बाद। पता नहीं, मैंने तो नहीं ऐसा कुछ सुना हुआ, क्योंकि नबी एक ऐसा मनसब है कि जिसका जानशीन हो ही नहीं सकता। नबी एक ऐसा मनसब है नबी जिसका का जानशीन हो ही जानशीन नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई एक ऐसी रूह होती है जिसका कोई जानशीन नहीं हो सकता, ना भाई उसका वही बेटा। बात है, आप अपनी कहानियां मुझे बड़ी सुनाते हैं, सारे मिर्जाई यही करते हैं। भाई आप देखें ना कितनी अच्छी बात होती है, आप कहें ये देखें ये वाला हवाला मिर्जा साहब का है, ये जो मैं बात बयान करूँ ना यहाँ उन्होंने बयान की। एक दफा भी आप मिर्जा साहब का नाम ही नहीं लेते, अपनी तरफ से हवाले दे ही जाते हैं। अच्छा चौहान साहब, मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, बात दरअसल ये है, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, तो चलती गाड़ी में से हवाले देना। और वैसे नहीं, भी जब मैं आप गाड़ी चला ये के हट समझता हूँ जाएंगे कि ना फिर भी आप मिर्जा साहब का हवाला कोई नहीं देंगे। नहीं, आप मैं मीठी आपको बातें हवाला बड़ी वैसे ही सुनाएंगे दे मुझे। सकूंगा क्योंकि मेरी तबीयत में हवालेबाजी है ही नहीं। मैं भाई सच्चे हवाले के लोगों से बगैर बात ही पहली नहीं दफा होती, में और क्योंकि आखिरी दफा में सच्ची बात करता हूँ। हाँ मैं आपको बताता हूँ ना, जो अब हमने हक मुअद्दल मान लिया एक शख्स को, जैसे ऐसी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है, हम उनकी मिसाल देखें कि भी वो ये किया करते थे। तो हाँ जी, अगर कोई शख्स खुद आके कहे जी मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू है? या मैं कहूँ कि मैं तारिक चौहान मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, इसकी क्या वैल्यू है? मैं कौन हूँ भाई? जो अल्लाह की ठीक है। तरफ से मुरसल आया, जिसने दावा किया, जिसको हमने मान भी लिया, उसकी बात बताएंगे तो कोई फायदा भी है। देखिए, मैं उसी की बात आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों में अब ये अकीदा सरायत कर गया है कि हजरत ईसा वफात पा चुके हैं और उनको जिंदा मानना शिरक है, और ये एक ईसाई अकीदा है जो मुसलमानों में डाल दिया गया था। ये भी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब की वजह से ही मुसलमानों में ये अवेयरनेस आई है। दूसरा अकीदा ये है कि आप मुसलमान इस बात के कायल हो रहे हैं कि इबादत का इनाम जो है वो अल्लाह ताला से मुकालमा और मुकाशफा है, वो हो सकता है। और जो इन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं कि अल्लाह किसी इंसान से बोल ही नहीं सकता, लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि इबादत आपकी का तो मजमून ही ये नहीं सूखे मुकम्मल होता। दावे है ना भाई, लोग कायल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? मैं तो आज तक किसी को नहीं देखा जो मुझे लगे कि जी इसने कहा हाँ ये जी अवैस को लेके आए थे, अवैस आया था क्या सुनो वर्ल्ड भाई, वो बड़े जोश जोश के साथ बेचारा हमारा भाई आया था, उसके यही थे जो वाटर साहब कह रहे हैं। वो यहाँ पर अवैस भाई माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ इनकी सारी चीजें पढ़ पढ़ा के तो एंड पे ना अवैस भाई कहते हैं कि यार मुझे तो पहले कुछ भी इल्म नहीं था, मेरा तो ईमान मजबूत ही अब जाके हुआ है, मैं तो अल्लाह के ऊपर यकीन ही मेरा अब जाके हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इनके दजल, इनके कादियानियों के दजल की वजह से। बिल्कुल ठीक है ना, अवैस जैसा बंदा, पढ़ा लिखा बंदा जो यहाँ पर आकर जिशान भाई, अपनी मैं सपोर्ट आपको एक इतनी बात करता बता है। दूं
कि जो सच है ना उसके ऊपर जितना मर्जी आप कोटिंग कर लें, सच ने बाहर आना ही आना है। और मिर्ज़ा साहब हकमो अदल इसी लिहाज से हैं कि दीन की जो सच्चाई उन्होंने की है, बाकी मुसलमानों में तो ये जुर्रत भी नहीं है कि उसको मान जाए। कि हकमो अदल किस और उसका है? तो आप हम तो उनका नाम ही नहीं फैमिली खुलकर लेते। इजहार करते हैं। हकमो अदल कहाँ से है बेचारे? आप तो उनका नाम ही नहीं लेते। अपने फलसफे से बयान, हर कोई मिर्जाई अपना फलसफा बयान कर रहा होता है। तो सर भाई मैंने ये पूछो कोई कहाँ लिखा खुद हुआ पे है? फलसफा तो बना तुम्हें बयान नहीं हवाले ना नहीं मैं किया कि देता। हजरत ईसा वफात पा गए हैं, ये मेरा फलसफा तो नहीं है। तो ये इसके तो मुतल्लिक तो ऐसे हमारी करें कि डिस्कशन अपने नहीं है। हजूर को ना, अपने हजूर को ना एक दफा कह दें, लेटर लिख के सारे बाई जर्नी से लेटर लिखें और कहें कि इस मोहम्मद के ऊपर एक खुतबा दे दें, ठीक है ना? लग पते जाएंगे आप लोगों को। नहीं, हमें इसमो अहमद पे खुतबा दिलवाने की क्या दिलवा जरूरत दें है? आप सर, उस आयत के ऊपर ना आप ऐसे करें कि खुतबा दिलवा दें बस, नहीं, हम खुतबा क्यों ठीक है ना? दिलवाएं सर? यकीन करें, मैं कहता हूं कि आप कहते हैं ना कि आप डंकी की चोट के ऊपर कह रहे हैं, दलाइल पेश कर रहे हैं, करें इस सिर्फ इस आयत के ऊपर दलाइल पेश कर दें, अपने कहे हजूर से एक एक खुतबा दे दें इसके ऊपर बस। बात ये है जिशान भाई, आपकी खुशी के तहत तो हमने खुतबे देने नहीं है। जो हमारे कायदे हैं हमने उन्हीं पर खुतबे देने हैं ना। तो दो अकीदे तो हमारे मुसलमानों ने खुले दिल से कबूल कर लिए, और यकीन माने कि ये इतना बड़ा चैलेंज आप लोगों को हो गया है कि आप जो मर्जी कर लें, आप नहीं हमें रोक सकते। इस चीज से नहीं वफात रोक सकते मसीह बाकर भाई, किस और चीज से मुकालमा इलाही के आप रोक ही नहीं सकते। किस चीज से आप तो जो बताएं ना, मर्जी किस करें। किस चीज से नहीं रोक सकते? कि हजरत ईसा जो है वो वफात पा चुके हैं, इस अकीदे पे धड़ाधड़ लोग कायल हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह आपने माफी दे अकीदा वाटर बनाया हुआ भाई। था ना, अच्छा वाटर भाई ये सब तो कुछ अब छोड़ दे। कायल हो गए गांधी साहब जैसे बंदे, ओ गांधी साहब कायल तो हो गए बच्चों, मिर्जा गांधी साहब इंजीनियर तो जैसे, पिछले कायल हो गए जनाब मौलवी खुदाई सा साहब बंदा जैसे। है, मेरे और से हमें नहीं क्या है। एक मिनट जी, इस हद पे तो अपना मिर्जा फलसफा इंजीनियर भी है, कायल हो अल्लाह गया है। एक मिनट जी, अभी झूठ बोल दिया इन्होंने, झूठ बोल दिया है। मिर्जा इंजीनियर भी कायल हो गया है। ये मिर्जा इंजीनियर की जरा वीडियो तो निकालें जो। मिर्जा इंजीनियर वफाते मसीह का कायल हो गया है। लगाएं जी वीडियो, अभी लगाएं यहाँ पे, जी लगाएं लगाएं। आपने बोला, मैंने बोला है? और झूठ मार रहे ने। निकल ही ना है वीडियो कोई इस तरह की। वो नहीं, उसकी वीडियो नहीं निकल आएगी, उसकी सारी चवलें निकल आएंगी, ये नहीं निकलेगी। ये नीचे वाली निकल सकती है उसकी। नहीं सॉरी, मिर्जा इंजीनियर का वो बंदे को, मुर्दे को जिंदा करने वाली वीडियो है। हेलो, टोन लो। हो गए जतवील। गांधी साहब की वीडियो है। तो गांधी ओ साहब ने भाई, बिल्कुल गांधी साहब की जो वीडियो है ना, आपके मिर्जा साहब से पहले सर सैयद अहमद अली खान साहब ने बकायदा दलाइल दिए हुए हैं वफाते मसीह के। मिर्जा साहब ने ये सर सैयद अहमद अली खान से चोरी किया, ये चोरी किए हैं। शायद आपको ये अच्छा, इल्म नहीं। मिर्जा साहब ने ये चोरी की है, तो सर सैयद अहमद खान की कोई जमात है? और सर सैयद अहमद अली खान की जो आज आप भी सर उसकी सैयद मस्जिद अहमद के खान का अंदर, अकीदा मानते हैं? वो सुन आप तो मानते लें, हैं सर सैयद अहमद वो खान का अकीदा? सुन तो लें, आज भी उसकी तफसीर मौजूद है, उसकी तफसीर पढ़ी भी जाती है। उसकी मस्जिद इंडिया में, मैं अभी आपको नेट से निकाल के दिखा देता हूँ, उसकी मस्जिद के उनकी अंदर मस्जिद अगर इंडिया में है, आप वो उनका सुन तो अकीदा ले मानते हैं यार। कि वो सही है? आप यार, मानते सुन हैं तो उनकी ले। तफसीर को सही? यार सुन तो लो, उसकी मस्जिद के अंदर बिल्कुल फिरका बाजी कोई नहीं है। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हर बंदा नमाज पढ़ता है। इतना अच्छा उसने अपना वो सेटअप वहां पे किया हुआ है, और उसके मानने वाले आज भी वहां पे मौजूद है, सब कुछ है। और यार कौन सी दुनिया में रहते हो यार आप? कभी आप कहते हो सारा पाकिस्तान अहमदी हो गया है, वहां पे अहमदियत बड़ी फैल गई है, मुसलमानों में बड़ा नरम रवैया पैदा हो गया है अहमदियों के लिए। मतलब हर चीज ही आपको यार ऐसी नजर आ रही है। और ये ऐनक कौन सी लगाते हो यार आप? मुझे भी दो ऐनक। बिल्कुल वही ऐनक लगाते हैं जो हक की ऐनक है। और कभी कहते हैं हमें तो पाकिस्तान में तो बड़ा मारा जा रहा है जी। अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं, उसके ऊपर आप लोगों का रोना धोना अभी परसों आपकी ब्रांड लगी हुई थी वहां पे कि पाकिस्तान में हमें जीने नहीं दे रहे। जीने नहीं दे रहे। अजीब से लोग हैं असल यार। में बात दरअसल ये है कि आप जो है ना, बात कुछ कही जाती है, उसको समझ कुछ रहे होते हैं। तो मैंने ये कौमी कैरेक्टर के बारे में कहा था कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाली कौम है, और और मैं खुद बड़ी मोहब्बत करता हूँ यार, यकीन करो। ये मेरे से अभी भी ले कल लें। वो आपकी नाज साहिबा ने ब्रांड लगाई हुई थी, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है। नहीं अबू बकर नहीं मोहब्बत की बात हो रही है। वो हाँ, अब आपकी इंसानियत- नाज साहिब इंसानियत है, वो वाली। हमारी नाज साहिबा नहीं है, वो आपकी इंसानियत। नाज साहिब है। अब और आप में तो औरतें नबी भी आने लग पड़ी हैं यार। अब एक अपनी मिनट औरतों जी, को तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ नाज साहिबा पैदा वो की कादियानी में हुई आपकी है। है भाई, वो सुन्नी हो गई हुई है। तो पैदा आप वो सबसे पहले कादियानी में उनका हुई है। कीदा जाके पूछ लें, फिर मुझे जाके कहें। वो कहती है वो तो आई सुन्नी नबी हैं।
कहती है मैं आई मसरूर के लिए हूँ मुझे भेजे मसरूर हाँ के लिए मसरूर के तो वो खिलाफ आई हैं। वो आपकी जनाब सुन्नी इनाम लगी है। लेके आई है, वो जिससे जो इनाम मिर्जा साहब को मिला था ना वही इनाम हाँ। मिला उसको भी। कौन सी लेकिन दुनिया वो में तो रहते हो सुन्नी आप? है भाई, वो सुन्नी सुन्नी है है, सुन्नी उसका है। मैं अभी आपको तजदीद नंबर दिखाता हूँ। ये जो आप बहाने करते हैं यार ना, आपने तजदीद तो नंबर उसका मैं दिखाता हूँ इंटरव्यू आपको। करना था, आपने इंटरव्यू करके बताया नहीं है कि वो सुन्नी है। वो तो कहती है इंटरव्यू करें मसरूर आप। साहब का काम बनता है मेरे पे ईमान ले आए, मसरूर खिलाफत को छोड़े इसको। वो ये बात नहीं कह भाई, रही है उसको मसरूर पहले का काम ईमान उसके बनता सुन्नी है भाई लेके कि रख। मैं आगी हूँ उसके अल्लाह तहत ही जो दावाजात मिर्जा साहब के थे उन्हीं चले दावाजात यार, के ये तहत तो मैं आगी फजूल हूँ। बातें हैं, मसरूर साहब छोड़े का परे। काम है मेरी बैत कर लें, मेरे चले अंदर आ ये जाए। फजूल बातें हैं, ये छोड़े। जिशान बहरहाल ये मैं आपको ये सारे वाली बात इनाम बता याफ्ता दूं, इन्हां विच ही ने। सारे इन्ना विच ही होने, वो चीमा भी इन्ना विच ही है। वो चीमा चीमा भी बेचारा इन्हां विच, नाज भी इन्हां विच, सारे ही इन्हां चा नाम सारे यकीन करो इनमें से ही हैं। चलो अब मैं सारे गाड़ी कुत्तों चलाने के लगा ऊपर हूँ। इधर ही हैं। तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वफात मसीह पर आपके बड़े आलम गामदी साहब कायल हो गए हैं, चलो और कर लो कालमा गांधी मुखातबा इलाही पे वो हजरत मौलाना इसहाक साहब कायल हो गए हैं। तो बात ये है कि अहमदियत की तो यही जीत है। आप हाँ, और मैं अहमदियत। तो किसी खाते में आते ही नहीं है। इतने बड़े बड़े उलमा जिनके लाखों लोग मानने वाले हैं, वो सब हमारी तरफ हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ਦੇ लाखों लोग कादियानी हो गए ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हो? इंशाल्लाह अगर वो कादियानी ना भी होए ना, तो वो हाँ। इस अकीदे पे पक्के हो जाएंगे। वो अब आप हो गए ने पक्के हो गए ने सारे, बन लो ने। अजीब जी गल है यार, पता नहीं ਮੈਨੂੰ लगਦਾ कि सस्ता कोई सस्ती कोई चीज है, कोई सस्ता पानी ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अल्लाह अकबर।